Hello dear students, welcome to this video. In this video we will discuss about class 9 chapter work and energy. So beta the chapter begins with work. Okay, here we are having work. The first thing is work. So what is work? If you are sitting on a chair and writing for so many hours, that means you have not done any work. Why? Because in terms of physics, Beta the work is said to be done only if there is force applied and on the application of the force, displacement should be there. Okay. Suppose I am just applying force on this board and the board is not moving. Okay. So that means displacement is zero. I am applying force, but displacement is zero. That means there is no work done. So the condition for the work is to be done is force should be applied, displacement should be there, and the angle between the force and displacement should not be 90 degree. Okay, so here we will say work is said to be done if force applied on an object displaces it. Okay, that means on the application of the force, displacement should be there. Okay, beta, or we can say that it is also defined as the product of force and displacement. Force applied on the object and displacement of the object. Moving on. Okay, so here work is equal to force into displacement. Work is equal to force into displacement. Suppose on this table I am having, or simply we can, I am having a block of mass m. ठीक है बेटा, after some time as you are applying force, okay, we can say that. और इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए हम क्या करते हैं, हम टेबल को सिंपल लिख देते हैं. So here our object is placed here at this position, having mass m, and object is at this position. Okay. Now here, after the application of the force, the object displaces, and now here it is the position. So displacement is beta g. On the application of force, displacement is there, s is there. So here F into S is your work done. That means force is applied on object, and after the application of the force, displacement must be there. In that case, only work is to be done. Okay. Here both F and S are parallel to each other. So beta F parallel S. That means force and displacement both are in the same direction. Well, both are in the same direction. That means work done is positive. कैसे होता है बेटा फॉर्मूला? W is equal to होता है F dot S. Okay. F and S. Force and displacement both are vector quantity. Okay, they have magnitude as well as direction. तो W is equal to F dot S और बेटा फॉर्मूला होता है फिर A dot B का फॉर्मूला AB cos थीटा वैसे ही F S cos थीटा. ठीक है, तो ये जो थीटा है ये आप क्लास 10 में पढ़ेंगे इसके बारे में, cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, ये सब आप क्लास 10 में पढ़ेंगे. करना क्या है वो देखो फटाफट यहाँ पे. Here we will say that theta is equal to 0 degree, cos 0 degree theta 1 होता है. Okay, theta is equal to 180 degree, cos 180 degree is equal to -1, and if theta is equal to 90 degree, then बेटा cos 90 कितना होता है हमारे पास में 0. Okay, so थीटा 0 डिग्री है, cos 0 1 होता है, थीटा 180 cos 180 -1, थीटा 90 cos 90 0. इसका जो ग्राफ होता है वैसे प्लॉट होता है मेरे साथ में अगर बात करूं तो ये 0 cos 0 की वैल्यू +1, 90 पे कितना होगा 0 और 180 पे अगर थीटा एंगल 180 है यहाँ पे एंगल 0 एंगल फिर 90 डिग्री फिर 180 डिग्री फिर 270 डिग्री सो ऑन ऐसा चलता है. तो हमारे पास में ये आपको केस पता होना चाहिए कि भाई थीटा की वैल्यू 1 कब है, -1 कब है और 0 कब है. ठीक है, अब मैंने आपको क्यों बताया ये थीटा की तीनों वाले क्यों बताए. तो सिंपल सा लॉजिक इतना सा है हमारे पास में कि वर्क डन आर ऑफ 3 टाइप्स, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन. ओके, दैट सिंपली मींस दैट केस फर्स्ट की बात करें, अगर हम टाइप्स ऑफ वर्क डन की बात करें बेटा जी, टाइप्स ऑफ वर्क डन की अगर बात करें तो फर्स्ट इज पॉजिटिव वर्क डन.
पॉजिटिव वर्क डन। ओके, पॉजिटिव वर्क डन की बात करते हैं बेटा, तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस जीरो। कॉस जीरो मैंने क्या बताया था 1, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है ये 1 है वैल्यू, यानी कि ये पॉजिटिव वर्क है। कब? व्हेन F पैरेलल टू S, व्हेन बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे था ना F और S दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो इस केस में वर्क डन क्या आएगा बेटा जी? हमारा पॉजिटिव आएगा। ओके, नाउ अगर हमारे फर्स्ट में, तो केस फर्स्ट हो गया पॉजिटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन की बात करें बेटा जी, नेगेटिव वर्क डन की अगर हम बात करते हैं बेटा जी, तो W इज इक्वल टू नेगेटिव है ना, एफ एस कॉस 180 डिग्री पे, देखो नेगेटिव कॉस 180 माइनस 1, तो माइनस एफ एस होता है। ओके, माइनस एफ एस नेगेटिव है। कब? F इज एंटी पैरेलल टू S। अब एंटी पैरेलल का मतलब क्या है बेटा? यानी कि F मेरा इस डायरेक्शन में है और S मेरा अपोजिट डायरेक्शन में है। If both F and S are anti-parallel, यानी कि are in opposite direction, in that case we are having negative work done. I wish आपको समझ में आ गया। Negative work में F and S both are in opposite direction. Okay, here in positive work done, F and S are in same direction. And but if the angle between these two is 90 degree. Case third, zero work done. जीरो वर्क डन। ओके, तो बेटा इस केस में W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री, माने कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है बेटा? इट इज 90 डिग्री। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो, बिकॉज कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। ठीक है, इसको सिंपल से ऐसे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट एक्सपेंडिंग अ स्प्रिंग, मैंने स्प्रिंग को खींचना शुरू किया, तो वर्क डन बाय मस्कुलर फोर्स, मैंने उसको स्प्रिंग को खींचा तो वर्क डन बाय मस्कुलर फोर्स इज पॉजिटिव है, बिकॉज मैं इधर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ ही हो रहा है, तो उस केस में हमारे पास में क्या आ जाएगा? केस पॉजिटिव वर्क डन का। ओके, लेकिन स्प्रिंग के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रही है। रीस्टोरिंग फोर्स माने कि जो इसको वापस अपनी पोजीशन में लेके जाना चाहती है। दैट रीस्टोरिंग फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट बेटा ऑब्वियसली मेरे साथ चल रहा है, तो उस केस में एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में? 180। तो रीस्टोरिंग फोर्स एंड एस के बीच में एंगल है हमारे पास में क्या हुआ? 180, तो नेगेटिव वर्क डन हो गया। ओके, एंड जीरो की अगर हम बात करें, आपके पास में वर्क डन जीरो कब होगा? सिंपल सी बात है, वी आर जस्ट स्टैंडिंग, ओके, एंड कीपिंग, वी आर जस्ट स्टैंडिंग, okay, and having some bag or some luggage. Okay, in that case suppose we are traveling here like this. Okay, so here the work done by gravitational force, the gravitational force as I told you earlier, that force with which basically gravitational force is the force just because of which earth attract each and every object towards its center. तो वो F नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट मेरा इस तरफ है, तो एंगल कितना होगा बेटा जी यहाँ पे? 90 डिग्री। एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। दैट सिंपली मींस दैट कि यहाँ पे आपके पास वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। ओके, सो व्हेन S and F both are perpendicular to each other, in that case no work is said to be done. तो ये P टाइप का वर्क था। अगर हम बात करते हैं ऐसा यूनिट की बेटा, ठीक है, ऐसे यूनिट ऑफ वर्क की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला है बेटा जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, ओके, इट्स जूल एंड फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, तो बेटा 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर। ओके, दैट मींस इफ आई एम हैविंग एन ऑब्जेक्ट and force 1 Newton is applying on this object and the displacement takes place is 1 meter. बेटा आप अगर केवल यहाँ से अगर स्टार्टिंग पॉइंट से ले रहे हो तो स्टार्टिंग पॉइंट तक ही जाओगे, सेंटर टू सेंटर, एंड टू एंड। ऐसे नहीं कि यहाँ पे अपने स्टार्टिंग के यहाँ पे एंड कर देना, नहीं, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो जिस पोजीशन से, उसी पोजीशन पे आपको दोबारा से जाना है। ओके, तो बेटा जी इफ okay, so here if F is equal to 1 Newton, then the force of 1 Newton is applied on an object displaces the object by 1 meter, then the work done is said to be 1 joule. यानी कि अगर आपके पास में
1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट पे एंड 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क डन हमारा 1 जूल होगा। ठीक है, सो हियर वर्क इज said to be 1 joule if 1 newton force applied on an object and object displaces from its position by 1 मीटर, यानी कि 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पे 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमने क्या कहा, हमने आपसे कहा कि वर्क डन कितना होगा बेटा जी, 1 जूल होगा। क्लियर। अब बात करते हैं एनर्जी की। बेटा जी एनर्जी इज बेसिकली डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। वर्क करने की जो एबिलिटी है, वर्क करने की जो कैपेसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की, दैट इज सेड टू बी एनर्जी। ओके, तो एनर्जी इज डिफाइंड एज द ability of the body to do work, okay, or capacity of the body to do work. Energy, it is defined as the energy of the body, it is defined as the ability of a body or ability of an object to do work। काम करने की जो ability है उसको बेटा हम क्या कहते हैं, एनर्जी। काम करने की जो कैपेसिटी है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे यूनिट क्या होगी बेटा जी, यहाँ पे ऐसे यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। ओके, अगर टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं बेटा जी, मेक श्योर टाइप्स ऑफ एनर्जी, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी की बेटा जी अगर हम बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी। कौन कौन सी होती है मैकेनिकल एनर्जी बेटा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्लास में करूंगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी बॉडी के अंदर आ रही है, दैट फॉर्म इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो वो फॉर्म जो होती है एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन, शेप, साइज की वजह से जो एनर्जी है दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर। और बहुत सारी हीट एनर्जी बेटा, ऑब्वियसली एनर्जी पासेस ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ना, हीट एनर्जी हो गया। लाइट एनर्जी होती है आपके पास में, लाइट एनर्जी। टाइडल एनर्जी, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स वी आर हैविंग एनर्जी है, टाइडल एनर्जी हो गया बच्चे। न्यूक्लियर एनर्जी, अब न्यूक्लियर एनर्जी सिंपल सी बात है, एनर्जी इन्वॉल्व इन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, जियोथर्मल एनर्जी, ओके, ओशियन थर्मल एनर्जी। तो वी आर हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ एनर्जीज एंड मजे की बात जो है बेटा वो ये है कि एनर्जी के जो फॉर्म्स हैं वो इंटर कन्वर्टिबल है। दैट मींस as per law of conservation of energy we can say that energy can neither be created nor be destroyed but it can transform from one form to another form। तो एनर्जी ना ही तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन आप वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेरिवेशन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, तो आई विश चैप्टर का इंट्रो आपको समझ में आया होगा। एक बार गो थ्रू करेंगे प्रॉपर्ली, लिख के देखेंगे चीज़ों को, क्योंकि न्यूमेरिकल से कैसे भी पूछ लिए जाते हैं बेटा। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिए जाते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिए जाते हैं, तो बेटर है एक बार गो थ्रू करेंगे नोट्स को। ओके, देन बाय।